Recording in progress. Good afternoon, everyone. Welcome to your lordships. As you all know, in the last class, we were doing the topic of charge, of which part B is joinder of charges. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. 218 एंड 220 तक हमारा कवर हो चुका था. क्विक रिवीजन करते हैं. सेक्शन 218, सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट अफेंसेस. फॉर एवरी डिस्टिंक्ट अफेंसेस of which any person is accused, there shall be a separate charge and every such charge shall be tried separately. That means हर डिस्टिंक्ट अफेंस के लिए सेपरेट चार्ज फ्रेम होगा एंड उन सेपरेट चार्जेस का सेपरेट ट्रायल होगा, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अक्यूज पर्सन इज by application, where the accused person by application in writing, that means the application must be in writing, so desires and the magistrate is of the opinion that such person is not likely to be prejudiced thereby, the magistrate may try together all or any number of the charges framed against such person. If कोई accused person है and he desires that the charges framed against me shall be tried in one trial, then in that case he may apply to the magistrate in writing, and if the magistrate considers that it does not prejudice to the accused person, then in that case he may try that person, all the charges of that person may be tried together. Now 219, three offenses of same kind within a year may be charged together. That means maximum clubbing of three offenses of same kind committed within the space of 12 months. That means within a space of 12 months जितने भी offenses किए हैं same kind के, उनकी क्लबिंग हो सकती है, उनका वन ट्रायल हो सकता है उन offenses का, बट मैक्सिमम लिमिट कितनी, ओनली 3 offenses कैन बी क्लब टुगेदर. एंड offenses of same kind means they are punishable with the same amount of punishment under the same section of IPC. Now trial for more than one offense. Section 220. If in one series of acts so connected together as to form the same transaction, more offenses than one are committed by the same person, that means same accused has committed the offense more than one in the same transaction, same accused has committed the more than one offense in the same transaction, then he may be charged with it and tried at one trial for every such offense. That means एक सेम ट्रांजेक्शन में सेम अक्यूज पर्सन ने मोर देन वन ऑफेंस कमिट किए, देन उन सारे ऑफेंसेस का वन ट्रायल हो सकता है. व्हेन अ पर्सन चार्ज with one or more offenses of criminal breach of trust or dishonest misappropriation of property as provided in subsection 2 of section 212 or in section 1 of 219, that means केस किसका है, criminal breach of trust और dishonest misappropriation of property, एंड उससे रिलेटेड वन और मोर ऑफेंस कमिट हुए हैं उस पर्सन से, इज एक्यूज ऑफ कमिटिंग, एंड उसके साथ साथ उसने क्या किया, पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग या कंसीलिंग द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, उस ऑफेंस को कमिट होने के लिए उसको फैसिलिटेट किया है सो दैट वो ऑफेंस कमिट हो सके, या उसका कमीशन कंसील किया है. वन और मोर ऑफ द फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ही मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर every such offense. Third, if the act alleged constitute an offense falling within two or more separate definitions of any law enforced for the time being by which offense are defined or punished, that means जो offense commit किया है वो दो या दो से ज़्यादा definition में कवर हो रहा है, offense committed दो या दो से ज़्यादा definition में कवर हो रहा है, the person accused of them may be charged with and tried at one trial each of such offense. Such offenses का one trial हो जाएगा. If several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense and constitute when combined a different offense, that means several acts commit किए, इन सबको अगर एक साथ कंबाइन करते हैं तो एक ऑफेंस बनता है, और इनमें से अगर दो कंबाइन कर या एक जो है वो अपने आप में एक सेपरेट ऑफेंस है, देन इन दैट केस इन ऑफेंसेस का वन ट्रायल हो सकता है. लाइक ए रेस्क्यूज बी अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी, ए ने बी को रेस्क्यू किया लॉफुल कस्टडी से, तो यहाँ पर आपका सेक्शन 225 लग जाएगा आईपीसी का.
एंड इन सो डूइंग कॉज ग्रीवियस हर्ट टू सी, ऐसा करने में उसने सी के साथ ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। अ कांस्टेबल, सी कौन था, सी अ कांस्टेबल इन हुज कस्टडी बी वॉज, तो व्हाट इज दिस इज सेम ट्रांजेक्शन। इन सेम ट्रांजेक्शन उसने ए को रेस्क्यू किया, बी को रेस्क्यू किया, ए ने बी को रेस्क्यू किया फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी ऑफ सी अ कांस्टेबल, एंड इन ऑर्डर टू डूइंग सच थिंग he causes grievous hurt to C. Then in that case, he may be charged or and convicted of offences under section 225 and 313 of the IPC. 221, where it is doubtful what offence has been committed. It is in doubt that what offence has been committed, then in that case, if a single act or series of act is of such a nature, कोई सिंगल एक्ट है या सीरीज ऑफ एक्ट है वो इस नेचर का, दैट इट इज डाउटफुल विच ऑफ सेवरल ऑफेंसेस ऑफ द फैक्ट विच कैन बी प्रूव विल कॉन्स्टिट्यूट द अक्यूज्ड मे बी चार्ज विथ हैविंग कमिटेड ऑल और एनी ऑफ सच ऑफेंस। ये कंफ्यूजन, ये डाउटफुल है तो कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, देन इन दैट केस अक्यूज मे बी चार्ज विथ हैविंग कमिटेड ऑल, या तो सारे ऑफेंसेस का चार्ज लगा देंगे या उनमें से किसी कुछ ऑफेंसेस का चार्ज फ्रेम कर दे कोर्ट, एंड any number of such charges may be tried at once, and सारे charges का one trial होगा because it is doubtful that which offence has been committed by the accused, or he may charge in the alternative with having committed some one of the said offences। या तो सारे offences का charge frame कर देगी कोर्ट और इन alternate offences कर सकती, ये offense commit किया और ये offense commit किया और ये offense commit किया है। इन cases में one trial होगा accused person का, जितने भी चार्जेस फ्रेम हुए हैं उन चार्जेस का वन ट्रायल होगा। इफ इन सच अ केस द अक्यूज इज चार्ज विथ वन ऑफेंस एंड इट अपीयर्स इन एविडेंस दैट ही कमिटेड अ डिफरेंट ऑफेंस फॉर विच ही माइट हैव बीन चार्ज अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, दैट मीन्स चार्ज फ्रेम हुआ किसी और ऑफेंस का और एविडेंस में अपीयर हुआ कि उसने कोई और डिफरेंट ऑफेंस कमिट किया जिसके लिए उसे सबसेक्शन 1 में चार्ज किया सकता, देन इन दैट केस he may be convicted of the offense which is shown to be have committed although he was not charged with it। तो जो एविडेंसेस से अपीयर हुआ है कि उसने ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया है उस पर उसका कन्विक्शन होगा इवन दो उसके लिए उसका सेपरेटली उसका चार्ज फ्रेम ना हुआ, और दैट मीन्स चार्ज फ्रेम हुआ इस ऑफेंस का बट एविडेंस में प्रूव हुआ कि इन्होंने दूसरा ऑफेंस कमिट किया था, इस ऑफेंस पे इनका कन्विक्शन हो जाएगा इवन दो इस ऑफेंस के लिए चार्ज फ्रेम ना हुआ हो। For example, A is accused of an act which may amount to theft। Accused ने एक कोई ऐसा एक्ट किया है जो theft अमाउंट कर सकता और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी अमाउंट कर रहा है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अमाउंट कर रहा है और चीटिंग अमाउंट कर रहा है, देन इन दैट केस ही मे बी चार्ज विथ थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग। चारों ऑफेंसेस के चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे। or he may be charged with having committed theft or receiving stolen property or criminal breach of trust or cheating, या फिर इन alternative charges frame होंगे। In the case mentioned, A is only charged with theft, केवल theft से charge किया। It appears that he has committed the offense of criminal breach of trust। Later on evidences के थ्रू ये appear हुआ that उसने criminal breach of trust किया या theft that of receiving stolen goods या stolen goods receive किए हैं, then he may be convicted of criminal breach of trust or of receiving stolen goods and charge किसका फ्रेम होता है theft का, but later on appears कि उसने criminal breach of trust किया या receiving stolen goods का offense commit किया, then in that case इन दोनों में से किसी एक पे उसका जो प्रूव हो जाए उस पे उसे कन्विक्ट कर देंगे, though he was not charged with such offense, even though उस offense का चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था। Section 222, when offense proved included in offense charged, that means when a person is charged with an offense consisting of several particulars, a person accused of के against charge frame हुआ जिसमें उसने जो offense commit किया था उसमें several particulars थे, a combination of some only of which constitute a complete minor offense। इनमें से अगर 4 पर्टिकुलर्स थे इनमें से जो 2 का कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में एक माइनर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है,
पूरे ऑफेंस का चार्ज फ्रेम हुआ, पूरे ऑफेंस के पर्टिकुलर्स मेंशंस हुए, जिसमें से कुछ पर्टिकुलर्स थे जो वो अपने आप में एक माइनर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देन इन दैट एंड सच कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड, एंड वो कॉम्बिनेशन कोर्ट में प्रूव भी हो जाता थ्रू एविडेंसेस, बट द रिमेनिंग पर्टिकुलर्स और आर नॉट प्रूव, अदर पर्टिकुलर्स नहीं प्रूव होते हैं. ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस दो ही वॉज नॉट चार्ज विथ इट. दैट मीन्स ऑफेंस फ्रेम हुआ मेजर ऑफेंस का, बट उसमें से कुछ पर्टिकुलर्स प्रूव हो गए वो जो अपने आप में माइनर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, देन इन दैट केस उसका कन्विक्शन माइनर ऑफेंस पर हो सकता है जब मेजर ऑफेंस के अदर पर्टिकुलर्स नहीं प्रूव हुए हैं, इवन दो उसका माइनर ऑफेंस का चार्ज फ्रेम ना हुआ हो. When a person is charged with an offense and facts are proved which reduce it to a minor offense, that means एक offense से उसका charge frame हुआ और जो facts prove हुए evidence में, जो facts prove हुए trial में through evidences, वो उसको minor offense में reduce कर देते हैं, उन facts के through वो minor offense में reduce हो जाता है. Then in that case he may be convicted of the minor offense although he is not charged with it. तो उसे माइनर ऑफेंस के लिए चार्ज किया सकता, उस माइनर ऑफेंस के लिए उसका कन्विक्शन हो सकता है इवन दो ही इज नॉट चार्ज विद इट. When a person is charged with an offense, he may be convicted of an attempt to commit such offense, though the attempt is not separately charged. आपका चार्ज फ्रेम हुआ अक्यूज पर्सन का, एंड इन दैट केस उसमें उसको अटेम्प्ट के लिए कोर्ट ने पनिश किया, कन्विक्ट किया, तो वो भी कर सकती है इवन दो अटेम्प्ट का चार्ज फ्रेम ना किया हो कोर्ट ने. देन ऑल्सो इन दैट केस अटेम्प्ट के लिए कोर्ट उसे चार्ज कर सकती है अक्यूज पर्सन को, अगर अटेम्प्ट प्रूव हो गया तो. Nothing in this section shall be deemed to authorize a conviction of any minor offense where the conditions requisite for the initiation of proceeding in respect of that minor offense have not been satisfied. That means कि minor offense पर तब तक कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसको until unless जो requisites हैं उसको इनिशिएट करने के लिए, उस प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए अगर वो रिक्विजिट्स फुलफिल नहीं हुई हैं, देन इन दैट केस माइनर ऑफेंस में उसका कन्विक्शन नहीं किया सकता है. A is charged under section 407 of IPC with criminal breach of trust in respect of property entrusted to him as a carrier. तो A के ऊपर चार्ज फ्रेम ऑफ 407 का IPC का criminal breach of trust. It appears that he did commit criminal breach of trust under section 406. And evidences से ये appear हुआ that उसने 406 का criminal breach of trust किया in respect of the property, but that it was not entrusted to him as a courier. He may be convicted of criminal breach of trust under the said section of 406. अब चार्ज फ्रेम हुआ 407 का, बाद में लेटर ऑन ट्रायल स्टेज पे प्रूव हुआ दैट ऑफेंस उसने 406 का किया था. देन इन दैट केस इवन दो 406 का चार्ज फ्रेम ना हुआ, देन 406 का चार्ज ना फ्रेम हुआ, उसके बाद भी 406 के ऑफेंसेस पर्टिकुलर्स प्रूव हो गए हैं, तो इस पे उसका कन्विक्शन हो जाता है. A is charged under section 325 of the IPC causing grievous hurt. He proves that he acted on grave and sudden provocation. 325 IPC में उसका चार्ज फ्रेम हुआ दैट उसने ग्रीवियस हर्ट कमिट किया है, बट लेटर ऑन एट द ट्रायल स्टेज ही प्रूव्ड दैट उसने वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में एक्ट किया था. ही कमिटेड दैट एक्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, एंड इन दैट केस ही मे बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 335 ऑफ दैट कोड, that is causing grievous hurt on grave and sudden provocation. Now section 223, what person may be charged jointly. अभी तक जो ज्वाइंट हो रहा था, अभी जो भी ज्वाइनिंग हो रही थी वो किन की हो रही थी, चार्जेस की हो रही थी. अभी तक ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस चल रहा था. नाउ इट इज ज्वाइंडर ऑफ अक्यूज्ड. It is also asked in your examination that which section provides about the joinder of accused persons. That is section 223. The following person may be charged and tried together, namely इन जो following persons mentioned है इस लिस्ट में, इनका चार्ज हो सकता है, इन सबको एक साथ इनका ट्रायल किया सकता है, इन अक्यूज पर्सन्स को एक साथ इनका ट्रायल हो सकता है. A. Person accused of the same offense committed in the course of same transaction. वो पर्सन्स जिन्होंने सेम ऑफेंस किया है एंड सेम ट्रांजेक्शन में किया है, उनका एक ट्रायल हो जाएगा उन अक्यूज का.
person accused of different offenses committed in the course of same transaction. That means अगर same transaction में same offense commit किया है उन लोगों ने, उन persons ने, उनका एक ट्रायल होगा, और अगर different offenses commit किए हैं but same transaction में commit किए then उनको भी एक साथ try कर सकते हैं. B is person accused of an offense and person accused of abetment or attempt to commit such offense. Means एक person है जिसके ऊपर चार्ज है that उसने ये offense particular offense commit किया है, and दूसरे person के ऊपर ये चार्ज है कि उसने उसको attempt किया है या फिर abetment किया. Like A पे charges हैं that उसने murder commit किया है, and B पे charges हैं that उसने murder abet किया. Then in that case इन दोनों का same trial, एक trial में इन दोनों को try करेंगे. Person accused of different offenses committed different person accused of more than one offense of the same kind within the meaning of section 219 committed by them jointly within the period of 12 months. That means 219 में वो offense fall कर रहे हैं, that is same kind के हैं और within 12 months किए हैं, then in that case और maximum clubbing of 3 offenses. तो जिन भी पर्सन अक्यूज हैं, जो जितने अक्यूज हैं, उन्होंने वन ऑफेंस कमिट किया है सेम काइंड का. मोर देन वन पर्सन अक्यूज ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219. 219 क्या कहता है कि आपका विद इन 12 मंथ्स अगर सेम काइंड के ऑफेंसेस कमिट हुए हैं तो उनमें से मैक्सिमम 3 की क्लबिंग हो सकती है, और वो ऑफेंस उन्होंने ज्वाइंटली किया है, एक साथ किया है, देन इन दैट केस उनका एक ट्रायल होगा. ई person accused of an offense which includes theft, extortion, cheating या criminal misappropriation, and person accused of receiving, retaining or assisting in the disposal या concealment of the property. That means जिन लोगों ने, जिन persons ने theft किया है, extortion किया है, cheating किया या criminal misappropriation किया है, वो persons, and जिन लोगों ने उस जो person accused है उस थेफ्ट से, एक्सटॉर्शन से मिलने वाली प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए, रिटेन करने के लिए या उसके डिस्पोजल में असिस्ट करने के लिए या उस प्रॉपर्टी को कंसील करने के लिए, जिसका पोजेशन ट्रांसफर हुआ है किससे, फर्स्ट नेम्ड ऑफेंसेस, मतलब इन ऑफेंसेस के थ्रू जिनका ट्रांसफर कमिट हुआ है. दैट मीन्स इन्होंने थेफ्ट किया, एक्सटॉर्शन किया है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया है, और इन्होंने उससे मिलने वाली प्रॉपर्टी को रिटेन किया है, पजेस किया है, और देन इन दैट केस इन सबका एक ट्रायल होगा. पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 411 and 414 of the IPC or either of those sections in respect of stolen property, the possession of which has been transferred by one offense. That means जिन्होंने 414 and 411 का offense commit किया है उनका सेम ट्रायल होगा. जी, person accused of any offense under chapter 12 of the IPC relating to counterfeit coin. चैप्टर 12 का ऑफेंस कमिट किया है, IPC के चैप्टर 12 का ऑफेंस कमिट किया है, विच इज काउंटरफीट कॉइन, ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफीट कॉइन. एंड पर्सन अक्यूज ऑफ एनी अदर ऑफेंस अंडर द सेम चैप्टर, जो दूसरे पर्सन उन्होंने सेम चैप्टर में कोई दूसरा ऑफेंस कमिट किया है रिलेटिंग टू सेम कॉइन, उस सेम कॉइन से रिलेटेड, और ऑफ अबेटमेंट या अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, या तो उस ऑफेंस को अबेट किया है और उस ऑफेंस को अटेम्प्ट टू कमिट किया है. एंड द प्रोविजंस कंटेन इन द फॉर्मल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू ऑल ऑफ सच चार्जेस. देन इन दैट केस दैट मीन्स चैप्टर 12 IPC का ऑफेंस किसी जिन लोगों ने किया है वो, और जिन्होंने उसी सेम चैप्टर में चैप्टर 12 IPC में कोई और ऑफेंस किया है रिलेटिंग टू सेम कॉइन, उनका एक ट्रायल होगा. प्रोवाइडेड दैट where a number of persons are charged with separate offences and such persons do not fall within any of the categories specified in this section. That means number of persons charged हैं separate offences से, अलग अलग offences से charged हैं number of persons, then in that case, और उनका केस A to G में fall नहीं कर रहा है, 223 के clause A to G में fall नहीं कर रहा है, then in that case the magistrate or court of session में if such persons by an application in writing so desire, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकता है, अगर वो लोग, वो पर्सन्स जो चाहते हैं कि उनका सेम ट्रायल हो, एक ट्रायल हो, वो इन राइटिंग मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देते हैं या कोर्ट ऑफ सेशन को. एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट सच पर्सन वुड नॉट बी प्रेजुडिशियली अफेक्टेड देयर बाय
एंड मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन जिसे भी एप्लीकेशन दी गई वो सेटिस्फाई हो जाता है उन एप्लीकेशन को और उन ऑफेंसेस को कंसीडर करके दैट हाँ इनका अगर सेम ट्रायल करेंगे तो इससे अक्यूज प्रिजुडिस नहीं होंगे एंड इट इज एक्सपीडियंट सो टू डू एंड ऐसा करना एक्सपीडियंट भी है दैट मीन्स मैजिस्ट्रेट का सेटिस्फैक्शन भी रिक्वायर्ड है दैट प्रिजुडिस कॉज नहीं होगा अक्यूज पर्सन को एंड इट इज एक्सपीडियंट टू सो डू ट्राई ऑल सच पर्सन्स टुगेदर उन सारे पर्सन्स को एक साथ ट्राई कर सकता है मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन एज अ केस में भी बट इट इज डिस्क्रिशन मैजिस्ट्रेट को देखना होगा दैट अक्यूज पर्सन्स को प्रिजुडिस कॉज ना हो एंड इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ऐसा करना नेसेसरी हो 224 withdrawal of remaining charges on conviction on one of several charges. That means withdrawal of charges is given under section 224 which says when a charge containing more heads than one is framed against the same person के against charge containing more heads than one एक से ज़्यादा heads के charges frame हो गए हैं and when a conviction has been had or one or more of them the complainant or the officer conducting the prosecution may, with the consent of the court, withdraw the remaining charges or charge or charges. That means एक person के against एक से ज़्यादा charges frame हो गए हैं और उस conviction हो गया उसका then in that case court की consent से withdrawal is not a discretion. विड्रॉल ऑफ चार्जेस कोई भी पर्सन कोई भी कंप्लेनेंट अपनी डिस्क्रिप्शन से नहीं कर सकता और विड्रॉल कौन करेगा जिसने चार्जेस लगाए हैं चार्जेस किसने लगाए कंप्लेनेंट ने या प्रोसिक्यूशन ने कि इस अक्यूज पर्सन ने ये ऑफेंसेस कमिट किए हैं तो वो विड्रॉ कर सकता बट दैट टू विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट जितने भी चार्जेस रिमेनिंग हो जाए जिस पे कन्विक्शन हो गया उसके अलावा जो चार्जेस बच गया उस पे विड्रॉल हो सकता है बट विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट और द कोर्ट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड या कोर्ट खुद से so motu may stay the inquiry into a trial of such charge or charges and such withdrawal shall have the effect of an acquittal on such charges that means इस पे conviction हो गया है ये charges बचे हैं या तो complainant इन charges को withdraw कर लेता कोर्ट की परमिशन या कोर्ट खुद चाहे तो इन charges के फेवर में इन charges की इंक्वायरी स्टे कर सकती है और इन जो ये विड्रॉल या स्टे ऑफ इंक्वायरी हो इनका इफेक्ट क्या होगा एक्विटल ऑन सच चार्ज जो बचे चार्जेस हैं जिन पे कन्विक्शन नहीं हुआ है उन पे इनका इफेक्ट होगा एज एन एक्विटल अनलेस द कन्विक्शन बी सेट असाइड जब तक कि कन्विक्शन सेट असाइड नहीं हो सकती है जहां कन्विक्शन सेट असाइड हुई तो कोर्ट क्या कर सकती है अगेन रिवाइव कर सकती है इन चार्जेस को जो विड्रॉ कर लिए गए थे या कोर्ट ने उस पर एक्विटल दे दिया था क्योंकि इफेक्ट ऑफ एक्विटल ग्रांट नहीं हुआ है सिर्फ उस टाइम के लिए स्टे कर दी गई प्रोसीडिंग दोबारा रिवाइव करके उन चार्जेस को सुना जा सकता है जिनको विड्रॉ किया गया था या जिन पे स्टे लगाया गया था नाउ वी विल स्टार्ट विद द ट्रायल चैप्टर 18 देयर आर 4 चैप्टर्स ऑन ट्रायल दैट इज चैप्टर 18 19 20 21 18 रिलेट टू ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन 19 रिलेट्स टू वारंट केसेस पे ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट ऑन वारंट केसेस 20 इज फॉर समन्स केसेस एंड 21 इज योर समरी ट्रायल Trial by court of session is chapter 18 from 225 till 237 and trial of warrant cases by magistrate is chapter 19. इसमें दो पार्ट्स हैं पहला if the case is instituted on a police report then section 238 till 243 plus 248 apply करेगा and if the case instituted otherwise than on police report that means either complaint case or in cases on which magistrate took the cognizance on his own personal information, personal knowledge. And next is chapter 20 that is trial of summons cases by the magistrate. And last is summary trial chapter 21 260 till 265. Summary trial is done by CGM or metropolitan magistrate. It can also be done by judicial magistrate first class which is empowered by the high court. Now see the procedure of trial. Court of session. कोर्ट ऑफ सेशन के पास हमें पता है कि केस कमिट होके आता 209 में
209 में जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता किसी ऑफेंस पे, एंड ही केम टू नो दैट इट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, देन इट विल कमिट इट टू दी कोर्ट ऑफ सेशन। एंड 219 में केस कमिट करेगा, एंड 219 का डी प्रोवाइड्स करता है दैट वो पीपी को नोटिफाई करेगा दैट दिस पर्टिकुलर केस हैज बीन कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन। एंड Section 225 says that trial conducted by the public prosecutor. पीपी को नोटिफाई कर दिया कोर्ट ऑफ सेशन ने दैट केस कमिट हो चुका है कोर्ट ऑफ सेशन के बाद, देन उसके बाद ट्रायल कंडक्ट कौन करेगा? पीपी करेगा। ओपनिंग ऑफ द केस कौन करेगा? पीपी करेगा। केस ओपन किया पीपी ने, अपने फैक्ट्स बताया कि इस बेस पे मैंने ये अलेज किया है दैट दिस पर्सन इज द अक्यूज पर्सन एंड ही हैज कमिटेड दिस इन दिस क्राइम। देन इन दैट केस इस कोर्ट को लगता है कि दैट हाँ ऑफेंस कमिट हुआ है, प्राइमा फेसाई केस बन रहा है, देन इन दैट केस ही विल फ्रेम द चार्ज। बट इफ देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, then in that case the court will discharge the person, the accused person. Okay, and if चार्ज फ्रेम हो जाते हैं देन इन दैट केस चार्ज वो पढ़ के सुनाया जाएगा अक्यूज पर्सन को। चार्ज फ्रेम होते ही वो अक्यूज पर्सन को मैजिस्ट्रेट चार्जेस पढ़ के सुनाएगा एंड उसे एक्सप्लेन करेगा अक्यूज पर्सन को। देन इन आफ्टर दैट मैजिस्ट्रेट विल आस्क वेदर यू प्लीड गिल्टी ऑन सच चार्ज और नॉट। क्या आप ये चार्जेस एडमिट करते हैं कि नहीं करते हैं, आप इस पे गिल्टी प्लीड करते हैं कि नहीं करते हैं। अब अक्यूज चाहे तो गिल्टी प्लीड करे, अगर अक्यूज गिल्टी प्लीड कर लेता है देन इन दैट केस उसे मैजिस्ट्रेट कन्विक्ट कर सकता है। हियर द मे वर्ड हैज बीन रिटन, मैजिस्ट्रेट मे कन्विक्ट दैट पर्सन। बट इफ मैजिस्ट्रेट को लगता है कि दैट जो प्ली है वो किसी इंड्यूसमेंट थ्रेट की वजह से हो रही, किसी फियर की वजह से अक्यूज पर्सन ने ये प्लीड किया है, ये गिल्टी प्लीड की है, इन दैट केस मैजिस्ट्रेट में प्रोसीड विद द ट्रायल। बट इफ अक्यूज पर्सन गिल्टी प्लीड ही नहीं करता है देन मैजिस्ट्रेट ट्रायल में प्रोसीड कर जाएगा। एंड व्हाट विल यू डू? मैजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन एविडेंस की डेट लगाएगा। सबसे पहले एविडेंस कौन देगा? प्रोसिक्यूशन देगा, बिकॉज ही इज द वन हु इज सेइंग दैट द अक्यूज पर्सन हैज कमिटेड सो एंड सो क्राइम। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे? प्रोसिक्यूशन में, टू प्रूव हिज केस। जब प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करेगा, प्रोसिक्यूशन से एविडेंस लेगी कोर्ट, उस एविडेंस को लेने के बाद फिर एक एग्जामिनेशन होता है अक्यूज पर्सन का अंडर सेक्शन 313। ये किसी भी स्टेज पे कर सकती है कोर्ट इन ऑर्डर टू अक्यूज पर्सन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टू एक्सप्लेन दैट केसेस जो सर्कमस्टांसेस हैं केस के आपके बियॉन्ड जा रहे हैं, क्या आपका इन फैक्ट्स पे कोई एक्सप्लेनेशन है। तो ये तो जनरली कोर्ट किसी भी स्टेज पर पूछ सकती है। अदरवाइज मैंडेटरी इनका एक एग्जामिनेशन होता है 313 में ही, दैट इज आफ्टर टेकिंग प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड बिफोर टेकिंग डिफेंस एविडेंस अक्यूज को बुलाया जाएगा, उसका 313 का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इस पर्टिकुलर केस की सर्कमस्टांसेस के बारे में आपको जो भी एक्सप्लेन करना है आप वो एक्सप्लेन करिए। प्ली ऑफ एलिबाई आपका यहाँ आता है पिक्चर में जब डिफेंस एविडेंस देना होता, बिकॉज इससे पहले तो प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव कर रहा है। जब प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव कर दिया देन इन लेटर केस अब प्ली ऑफ एलिबाई आप रेज कर सकते हो कि दैट ऑन द पर्टिकुलर डे आई वाज समवेयर एल्स। स्टेटमेंट ले लिया गया 313 का। एविडेंस जो भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस आए हैं उसके थ्रू पता चला कि अक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, कोई भी एविडेंस ऐसे सफिशिएंट नहीं थे जो अक्यूज के अगेंस्ट में जाए। देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट एक्विट, कोर्ट ऑफ सेशन एक्विट कर देगा उसे। बट इफ एक्विट नहीं किया है, ऐसा लगता है कि नहीं केस है, अब डिफेंस के पास केस हो जाएगा। पार्डन ऑफ प्रूफ नाउ शिफ्ट ऑन द डिफेंस टू प्रूव हिज केस। नाउ डिफेंस विल गिव इट्स एविडेंस अंडर सेक्शन 213। आफ्टर दैट दोनों के एविडेंसेस पे आर्ग्यूमेंट होंगे। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन दोनों के एविडेंसेस को, जितने भी एविडेंसेस दिए प्रोसिक्यूशन ने और डिफेंस ने, उनको कंसीडर करेगा एंड आफ्टर दैट ही विल पास द जजमेंट ऑफ एक्विटल और जजमेंट ऑफ कन्विक्शन। जब कन्विक्शन का जजमेंट पास होता है तब सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर हियरिंग होती है, दैट विच पनिशमेंट शुड बी गिवन, कितने सेंटेंस की क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होना चाहिए, क्वांटम सेंटेंस क्या होना चाहिए, उसकी हियरिंग यहाँ होगी। अगर वो कन्विक्ट ही नहीं हुआ है तो अगर एक्विट हो गया है तो इसका कोई इशू मतलब नहीं है। बट इफ कन्विक्शन हो गया है तो उसको सेंटेंस पे सुनेंगे। सेंटेंस पे क्यों सुनेंगे? बिकॉज
इफ प्रीवियस कन्विक्शन है, प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से उसका सेंटेंस इनहांस हो सकता है, तो उसको इस टाइम सुनते हैं कि बिकॉज ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन आपका सेंटेंस इनहांस हो रहा है इस फेवर में। अगर पहले प्रोसिक्यूशन से एविडेंस लेंगे कि आप प्रूव करिए दैट बिकॉज किस वजह से ये ऑफेंस इनहांस होना चाहिए, पनिशमेंट इनहांस होनी चाहिए, जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस दे देगा कि हाँ ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड अंडर दिस एंड दिस ऑफेंस, देन इन दैट केस डिफेंस को सुनेंगे और आफ्टर दैट कोर्ट ऑफ सेशन विल पास द जजमेंट ऑन सेंटेंस। Now we will read the sections. (225) Trial to be conducted by public prosecutor. That means court of session के सामने जो केस आएगा उसमें ट्रायल कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर. In every trial before a court of session, the prosecution shall be conducted by a public prosecutor. Opening a case for the prosecution. When the accused appears, समन्स और वारंट गया अक्यूज के पास एंड अक्यूज अपीयर्स, प्रोसेस शुरू हो गया था 204 में, केस कमिट हो चुका है 209 में. नाउ अक्यूज अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इन परसुएंस ऑफ अ कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 209. द प्रोसिक्यूटर शैल ओपन हिज केस. प्रोसिक्यूटर अपना केस ओपन करेगा बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट द अक्यूज, कि अक्यूज के अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस हैं, एंड स्टेटिंग बाय व्हाट एविडेंस ही प्रपोजेस टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज. एंड किन किन बेसिस पे आप ये प्रोसिक्यूशन ये बोल रहा है, स्टेट कर रहा है दैट अक्यूज पर्सन हैज कमिटेड दिस ऑफेंस. प्रोसिक्यूशन अपना केस स्टार्ट करेगा, ओपन करेगा, बताएगा अक्यूज पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया, इस दिन कमिट किया है, एंड व्हाट इज द बेसिस ऑन विच, व्हाट आर द एविडेंसेस जिसके बेसिस पे आप ये कहना चाहते हैं अक्यूज ने ये ऑफेंस कमिट किया है. Discharge. If upon consideration of the record of the case and the documents submitted therewith, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो भी के नाम रिकॉर्ड ऑफ द केसेस दिए हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो भी रिकॉर्ड ऑफ द केस कोर्ट के पास आए हैं थ्रू कमिटल अंडर सेक्शन 209 एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयरविथ, and after hearing the submission of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considered that there is no sufficient ground. मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज के अगेंस्ट प्रोसीडिंग फर्दर कैरी ऑन करने के लिए कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं, देन ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज. कोर्ट ऑफ सेशन अक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा एंड रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग सो. और डिस्चार्ज जिस ग्राउंड पे किया, किस रीजन की वजह से डिस्चार्ज किया, उसको रिकॉर्ड करेगा. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 228 में चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे. इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज अफोरसेड द जजेस ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द अक्यूज हैज कमिटेड एन ऑफेंस, दैट मीन्स मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पर ग्राउंड हैं तो ये प्रिज्यूम करने के लिए ऑफेंस अक्यूज ने किए हैं. प्रिज्यूम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी प्रूव नहीं हुआ है. प्रूव कब होगा? ट्रायल में प्रूव होगा. देन और अक्यूज ने कैसा ऑफेंस कमिट किया? विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. अगर वो ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, ही में यहाँ पर फिर कोर्ट ऑफ सेशन क्या रहेगा? फ्रेम ऑफ चार्ज. कोर्ट ऑफ सेशन चाहे तो चार्ज फ्रेम करे और उस अगेंस्ट द अक्यूज एंड बाय ऑर्डर ट्रांसफर द केस फॉर द ट्रायल टू द सीजीएम, बिकॉज कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, सो वो सीजीएम को ट्रांसफर कर देगा केस कोर्ट ऑफ सेशन या एनी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड डायरेक्ट द अक्यूज टू अपीयर बिफोर द सीजीएम. एंड अक्यूज को डायरेक्ट करेगा सीजीएम और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एट द केस में भी उसके सामने आप अपीयर हो, क्योंकि केस आपका ट्रांसफर हो चुका है. द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल ट्राई, कोर्ट ऑफ सेशन ने जिस सीजीएम या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को केस ट्रांसफर किया, ही शैल ट्राई द ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट. दैट मीन्स आपका कौन सा चैप्टर लगेगा यहाँ पे? 19 का ए पार्ट. ठीक है, चैप्टर 19 का ए पार्ट. ये माना जाएगा दैट वो पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है और उसी के अकॉर्डेंस में उसका ट्रायल होगा. B is exclusively triable by court. That means is exclusively triable by court of session. अगर exclusively triable by court of session, अगर court of session को लगता है is not exclusively triable, then he will transfer the case to the CJM or judicial magistrate first class. But if it found that it is exclusively triable by this court of session, he shall frame in writing a charge against the accused. Then court of session in writing charge frame करेगा.
वारंट केसेस में चार्जेस हमेशा इन राइटिंग फ्रेम होते हैं, समन्स केसेस में डिस्क्रिशन है कि आप इन राइटिंग चार्ज फ्रेम करें, अगर डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, चाहे तो इन राइटिंग चार्जेस फ्रेम ना करें। बट वारंट केसेस में इट इज मैंडेटरी दैट चार्ज शैल बी इन राइटिंग, चार्ज शैल बी फ्रेम्ड इन राइटिंग। Whether judge frames any charge under clause B, अगर charges frame कर दिए court of session ने, the charge shall be read and explained to the accused and the accused shall be asked, charges accused persons को पढ़ के सुनाए जाएंगे, explain किए जाएंगे that क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, and उससे पूछा जाएगा, it will be asked to him whether he plead guilty of the offence charge or claim to be tried, whether वो guilty अपना plead कर रहा है that हाँ उसने offence commit किया है, और उससे ये पूछेंगे क्या आप ट्रायल चाहते हैं। इफ अक्यूज ने गिल्टी प्लीड कर लिया, देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन में कन्विक्ट हिम ऑन हिज प्लीड ऑफ गिल्टी। और इफ मैजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट कर दिया तो 200 कोर्ट ऑफ सेशन ने 229 में कन्विक्ट कर दिया प्लीडिंग गिल्टी पर। बट इफ नहीं किया, देन इन दैट केस प्रोसिक्यूशन एविडेंस की डेट देगा। इफ द अक्यूज रिफ्यूजेस टू प्लीड, अक्यूज ने मना कर दिया गिल्टी प्लीड करने से, या फिर अक्यूज ने प्लीड ही नहीं किया, उसने गिल्टी नहीं प्लीड की दैट आई हैव नॉट कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस, या क्लेम्स टू बी ट्राइड, उसने बोला कि आई वांट माय फेयर ट्रायल, और इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229, दैट मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन ने ही उसे कन्विक्ट नहीं किया, इवन दो उसने गिल्टी प्लीड की, बट कोर्ट ऑफ सेशन ने कन्विक्ट नहीं किया। अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगा कि नहीं ये वॉलंटरली गिल्टी प्लीड नहीं कर रहा है, देन इन दैट केस द जज शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। जज क्या करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, डेट फिक्स करेगा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की, एंड मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस या प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट या अदर थिंग, और प्रोसेस इशू करेगा फॉर अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन और एनी प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग, और डेट लगा देगा प्रोसिक्यूशन एविडेंस की। आफ्टर दैट प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देगा 231 ऑन द डेट सो फिक्स्ड द जजेस शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन द सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन एविडेंस की डेट लगी, प्रोसिक्यूशन ने अपने जितने भी एविडेंसेस दिए उस डेट पर जज सारे एविडेंसेस लेगा जो भी प्रोसिक्यूशन ने अपने सपोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं। द जज मे इन हिज डिस्क्रिशन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डेफर्ड अंटिल एनी अदर witnesses have been examined, या रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी कोर्ट परमिट कर सकता है। एक्विटल आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लेने के बाद कोर्ट को एग्जामिनिंग द अक्यूज्ड एंड हियरिंग द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस ले लिए, अक्यूज को एग्जामिन कर लिया, एंड हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस ऑन द पॉइंट, एंड डिफेंस को और प्रोसिक्यूशन को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोर्ट ने सुना, हियरिंग की। द जज कंसीडर्स, और जज को ये लगता है कि देयर इज नो एविडेंस दैट द अक्यूज्ड committed the offense, the judge shall record an order of acquittal। अगर जज को ये लगता है इन सब के बेसिस पे दैट अक्यूज पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, देन इन दैट केस जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। बिकॉज क्रिमिनल केसेस में आपका केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होना चाहिए दैट हाँ इसी अक्यूज पर्सन ने ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है। okay? अदरवाइज जब तक गिल्ट प्रूव नहीं होता है उस अक्यूज पर्सन को इनोसेंट मानेंगे। Entering upon defense, where the accused is not acquitted under section 232, अगर accused का acquittal नहीं होता under section 232 में, he shall be called upon to enter on the defense। Now अब डिफेंस अपना एविडेंस सबमिट करेगी, अब डिफेंस से एविडेंस मांगा जाएगा बिकॉज एंड अड्यूस एनी एविडेंस ही मे हैव इन सपोर्ट देयर ऑफ। प्रोसिक्यूशन ने केस स्टैब्लिश कर दिया है, कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि हाँ अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया, अब डिफेंस से एविडेंस मांगेंगे, आप प्रूफ करिए, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू दैट आपने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया है। क्योंकि एक पार्टी ने अपना पार्ट प्रूफ कर दिया दैट अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया, नाउ इट इज अपॉन अक्यूज्ड कि वो प्रूफ करे दैट उसने वो ऑफेंस कमिट नहीं किया है। If the accused puts in any written statement, the judge shall file it with the record। अगर accused कोई written statement देता है in his defense, then judge उसे record में अपने फाइल कर लेगा, because ये judicial admission है।
if the accused applies for the issue of any process for compelling the attendance, अगर accused भी बोलता है कि मुझे ये witnesses एग्जामिन करने हैं, इनकी अटेंडेंस सिक्योर, इनकी अटेंडेंस इंश्योर कराइए, ये डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए जिन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो कोर्ट क्या करेगी, इसमें अगर समन्स प्रोसेस इशू करेगी. अक्यूज ने अप्लाई किया फॉर इशू ऑफ एनी प्रोसेस फॉर कंपलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, किसी विटनेस की अटेंडेंस को कंपल करने के लिए अक्यूज ने अप्लाई किया, या प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, देन इन दैट केस जज शैल इशू सच प्रोसेस. ओके. आर्ग्यूमेंट्स, दोनों पार्टीज ने अपने एविडेंसेस दे दिए हैं, प्रोसिक्यूशन ने भी, डिफेंस ने भी. 313 का एग्जामिनेशन भी हो चुका है. नाउ व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो चुका है विटनेसेस का, फॉर द डिफेंस इज कंप्लीट, तो जैसे ही डिफेंस के विटनेसेस का एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, द प्रोसिक्यूटर शैल सम अप हिज केस, प्रोसिक्यूटर अपना केस सम अप कर देगा, एंड द अक्यूज्ड एंड द प्लीडर शैल बी इंटाइटल्ड टू रिप्लाई, provided that where any point of law is raised by the accused or his pleader, the prosecution may, with the permission of judge, make his submission with regard to such point of law. But if accused person ने कोई point of law raise कर दिया अपने defense में, then in that case prosecution चाहे तो वो जज की परमिशन लेके उसके रिगार्ड में भी अपना सबमिशन कर सकता है. अदरवाइज अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ रेज नहीं हुआ, देन इन दैट केस प्रोसिक्यूशन अपना केस सम अप कर देगा आफ्टर द प्रोडक्शन, आफ्टर द अक्यूज पर्सन्स ने अपना डिफेंस जो भी सबमिट किया एविडेंस. नाउ आर्ग्यूमेंट्स हो गए. जजमेंट ऑफ एक्विटल ऑन कन्विक्शन, आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट ऑफ लॉ इफ एनी, द जज शैल गिव अ जजमेंट इन द केस. आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, पॉइंट ऑफ लॉ अगर कोई है उसे सुनने के बाद जज अपना जजमेंट देगा. जजमेंट किस चीज़ का हो सकता है, या तो एक्विटल करेगा कोर्ट, या तो कन्विक्शन करेगा. इफ द अक्यूज इज कन्विक्टेड, द जज शैल, अनलेस ही प्रोसीड्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ 360, हियर द अक्यूज ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस एंड देन पास सेंटेंस हिम अकॉर्डिंग टू लॉ. दैट मीन्स अगर अक्यूज कन्विक्ट हो रहा है, देन इन दैट केस अब क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुना जाएगा अक्यूज को. सी, accused the judge shall hear the accused on the question of sentence and then pass sentence on him according to law. But if 360 में proceed करने की जरूरत है, 360 means अगर उसको एडमोनिशन देना है या फिर उसको गुड कंडक्ट या गुड बिहेवियर पर उसको कोर्ट को लगता है दैट विद इन लेस देन 21 ईयर्स है, फर्स्ट टाइम ऑफेंस कमिट किया है और 360 का कोई भी केस बन रहा है, देन इन दैट केस तो 360 में जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन. बट इफ 360 का केस नहीं बन रहा है, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट का केस नहीं बन रहा है, एडमोनिशन देने का केस नहीं बन रहा, देन इन दैट केस अक्यूज को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनेंगे और सेंटेंस पास कर देंगे. नाउ 236 प्रीवियस कन्विक्शन. 211 सबसेक्शन 7 सेज दैट चार्ज में प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में मेंशन होना चाहिए इफ प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से सेंटेंस इनहैंस हो रहा है या कोई डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंस बन रहा है. बट अगर ओमिट भी हो जाता है तो सेंटेंस पास करने से पहले कोर्ट कभी भी उसे अपने चार्ज में कोर्ट मेंशन कर सकती है. सो in a case where a previous conviction is charged under the provision of subsection 211(7) का चार्ज बना हुआ प्रीवियस कन्विक्शन का मेंशन है उसमें दैट बिकॉज ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन अक्यूज को इनहैंस पनिशमेंट मिलनी चाहिए एंड द अक्यूज डज नॉट एडमिट दैट ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड. और अक्यूज 211 और 7 में 211 के सबसेक्शन 7 में जो मेंशन है कि प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड चार्ज होना बना हुआ है और अक्यूज एडमिट नहीं कर रहा दैट उसका प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है जैसा चार्ज है मेंशन्ड है. द जज में आफ्टर ही हैज कन्विक्टेड द सेड अक्यूज अंडर सेक्शन 229 और सेक्शन 235 टेक एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द alleged प्रीवियस कन्विक्शन एंड शैल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग देयर ऑड. दैट मीन्स उसको एक्विट किया गया, उसको क्या नाम एक्विटल नहीं हुआ, उसका कन्विक्शन हुआ है. एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट 211 और 7 का चार्ज बन रहा है, दैट मीन्स प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से सेंटेंस इनहांस हो रही, प्लस उसने एडमिट किया है कि उसने ये एडमिट ही नहीं किया है कि उसने पर्टिकुलर प्रीवियस कन्विक्शन उसका हुआ है इस ऑफेंस के रिलेशन में एंड उसका कन्विक्शन हो जाता है उस पर्टिकुलर केस में. देन इन दैट केस कोर्ट ऑफ सेशन एविडेंस लेगा उस एलिस्ट प्रीवियस कन्विक्शन के रिस्पेक्ट में एंड उसके रिकॉर्ड करेगा अपनी फाइंडिंग उस पर
provided that no such charge shall be read out by the judge, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted under section 229 और section 235. जब तक कन्विक्शन नहीं होता तब तक प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, ना ही उसका कोई रेफरेंस होगा, ना ही एक्यूज उसके बारे में कुछ कहा जाएगा कि प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में आप कुछ कहिए. जहां कन्विक्शन हो गई एक्यूज की, उसके बाद उस प्रीवियस कन्विक्शन पिक्चर में आता है, बिकॉज हमको क्या सेंटेंस उससे डिसाइड होता है, उससे क्वांटम ऑफ सेंटेंस डिसाइड होता है कि वेदर इसको इनहांस पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए. प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सबसेक्शन 2. सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 में कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है. जनरली कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस. Section 193 says that court of session cannot take cognizance in its original jurisdiction, but this is exception. It relates to the defamation of president, vice president, governor of a state. A court of session taking cognizance of an offence under subsection 2 of section 199 shall try the case in accordance with the procedure for the trial of warrant case instituted otherwise than on a police report before a court of magistrate. That means chapter 19 का B part अप्लाई करेगा. B part के जो sections और provisions provided है वो अप्लाई करेंगे. Provided that the person against whom the offence is alleged to have been committed shall, unless the court of session for reasons to be recorded otherwise that be examined as a witness for the prosecution. That means जिनके against ये offence alleged हुआ है, जिनके against ये offence commit हुआ है, उनको कब एग्जामिन करेंगे? जब तक कोर्ट ऑफ सेशन रीजन रिकॉर्ड करके डायरेक्ट ना करे. बिकॉज वो कौन है? प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर्स हैं, तो उन्हें तभी एग्जामिन कर सकते हैं एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस जब कोर्ट ऑफ सेशन ने इन रीजंस रिकॉर्ड करके डायरेक्ट किया हो. एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन कैमरा. जो भी ट्रायल होगा इस सेक्शन में वो कैसे होगा? इन कैमरा. Section 327 of CRPC what says that court shall be open. कोर्ट टू बी ओपन, ये आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है. 320 रिलेट्स किससे करता है और कोर्ट टू बी ओपन किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है? दैट इज योर सेक्शन 327. इसका एक्सेप्शन है दैट इस केस में ये प्रोसीडिंग्स इन कैमरा होगी. okay? अगर पार्टीज डिजायर करती हैं, इफ आइदर पार्टी देयर टू सो डिजायर्स और इफ द कोर्ट थिंक्स फिट टू, या कोर्ट को लगता है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी चाहिए. okay? Now next is your warrant trial. Trial of warrant cases by magistrate. Warrant is defined in your section 2x. okay? इसमें दो केसेस हो, या तो केस आपका पुलिस रिपोर्ट पे आया हो, केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ तो 173 सबसेक्शन 2 में रिपोर्ट फॉरवर्ड हुई है, और अदरवाइज हुआ हो दैट इज आइदर कंप्लेंट केस और इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज, मैजिस्ट्रेट अपनी ओन नॉलेज को क्लियर लिया. तो इन दोनों के प्रोविजंस अलग हैं. पार्ट ए पुलिस रिपोर्ट पे अप्लाई करता है, पार्ट बी जो होता है केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट. सेक्शन 230A सेज दैट पहले मैजिस्ट्रेट देखेंगे 207 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं. 207 का कंप्लायंस मींस जो कॉपीज फॉरवर्ड करनी थी अक्यूज्ड को, इफ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट है, वो कॉपीज अक्यूज को फॉरवर्ड कर दी गई हैं कि नहीं कर गई हैं. अगर अक्यूज के पास कॉपीज आ गई हैं, इन दैट केस अगर कोर्ट को लगता है कि चार्जेस फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, उसके अगेंस्ट केस नहीं बन रहा है, तो डिस्चार्ज हो जाएगा. बट इफ सफिशिएंट ग्राउंड है तो चार्ज फ्रेम हो जाएंगे, एंड उसके बाद चार्ज उसको पढ़ के सुनाए जाएंगे, एक्यूज को रीड किए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे एक्यूज को, और उससे पूछा जाएगा वेदर यू प्लीड द गिल्टी और नॉट. इफ ही प्लीड गिल्टी देन इन दैट केस कन्विक्शन 241 में हो जाएगा. बट इफ नहीं प्लीड करता तो वही एविडेंस लेंगे प्रोसिक्यूशन का और डिफेंस का, एंड इस केस और उसके बाद एक्विटल या कन्विक्शन का जजमेंट पास हो जाएगा. जजमेंट अगर कन्विक्शन का होता है तो सेंटेंस पे हियरिंग होगी. नाउ इफ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट तो 244 में एविडेंस लेंगे प्रोसिक्यूशन का, 245 में डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड हो जाएगा अगर केस उसके अगेंस्ट नहीं बन रहा है. 246 अगर डिस्चार्ज नहीं होता है तो आगे ट्रायल से प्रोसीड करेंगे, चार्जेस फ्रेम होगा और एविडेंस लेंगे डिफेंस के. यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लिया जा चुका है. प्रोसिक्यूशन का एविडेंस यहाँ पर पहले क्यों ले रहे हैं?
बिकॉज यहाँ तो आपके पास पुलिस रिपोर्ट आ गई है, पुलिस ऑफिसर ने पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, मैजिस्ट्रेट के पास कुछ फैक्ट्स हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर्स मेरे पास ये चीज़ें हुई हैं, इसके रिगार्डिंग मेरे पास स्टेटमेंट्स हैं, बट अदरवाइज केसेस में आपके पास केवल मैजिस्ट्रेट पर केवल 200 का स्टेटमेंट होता है और 202 की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी होती है। तो प्रोसिक्यूशन से कहा जाता है कि आप अपना केस सबमिट करिए, आप अपने केसेस के फेवर में एविडेंस दीजिए कि क्या केस बन रहा है, और उसके बाद फिर डिफेंस से एविडेंस लेती है कोर्ट। यहाँ पे कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 208 होना चाहिए, अक्यूज को यहाँ पर कॉपीज 208 में जाएगी, अदरवाइज एंड ऑन पुलिस रिपोर्ट में। इसमें देख लेते हैं कोई एक्स्ट्रा सेक्शन, अदरवाइज मोस्टली सेक्शंस आर सेम। चार्ज फ्रेमिंग एंड डिफेंस वाला देख लेते हैं। 238 कंप्लायंस विद सेक्शन 207, when accused shall be discharged if upon considering the police report and the documents sent with it under section 173, पुलिस रिपोर्ट जो गई 173 में और जो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ गए हैं उसको कंसीडर करने के बाद और एग्जामिन करने के बाद, if any of the accused as the magistrate thinks necessary after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, both parties को magistrate ने opportunity of being heard दे दी, the magistrate considered the charge against the accused to be groundless, जो charges लगे हैं accused के against वो क्या हैं, groundless हैं, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing। framing of charge if groundless नहीं है, कंसीडर करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, मैजिस्ट्रेट ऑफ द ओपिनियन दैट इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस ट्रायबल अंडर दिस चैप्टर, चैप्टर 19, which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused। उसको लगता है कि ये कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई इस केस को, इस केस में मैजिस्ट्रेट एडिक्वेटली पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, राइटिंग में चार्ज फ्रेम करेगा अगेंस्ट अक्यूज्ड। द चार्ज शैल देन बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, एंड उससे पूछा जाएगा गिल्टी प्लीड करता है कि नहीं। उसके बाद सेम प्रोसीजर आपका कि गिल्टी प्लीड करने पे मैजिस्ट्रेट उसकी प्ली रिकॉर्ड करके उसे कन्विक्ट कर सकता है, बट नहीं करता है तो आपका प्रोसिक्यूशन से फिर एविडेंसेस लिए जाएंगे। मैजिस्ट्रेट शैल फिक्स डेट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, फिर डिफेंस एविडेंस होंगे। पार्ट बी है केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज एंड ऑन पुलिस रिपोर्ट, इसमें प्रोसिक्यूशन से एविडेंस लेंगे, अगर उनके बेसिस पे लगता है अक्यूज ने ऑफेंस कमिट नहीं किया, चार्जेस ग्राउंडलेस हैं, तो उसे डिस्चार्ज कर देंगे, बट इफ डिस्चार्ज नहीं होता है तो ट्रायल से प्रोसीड करेंगे, चार्ज फ्रेम होगा। ओके, रीड और एक्सप्लेन किया जाएगा अक्यूज को, पूछा जाएगा गिल्टी प्लीड करता है कि नहीं करता है, अगर मैजिस्ट्रेट को उस पर कन्विक्शन रिकॉर्ड करना तो मैजिस्ट्रेट उसे कन्विक्ट कर देगा, अगर नहीं लगता तो डिफेंस एविडेंस लेगा। और 248 में एक्विटल या कन्विक्शन का ऑर्डर पास होगा। If in any case under this chapter in which a charge has been framed, the magistrate finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal। इतनी प्रोसीडिंग्स होने के बाद, इतना ट्रायल होने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज गिल्टी नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट एक्विटल का ऑर्डर पास कर देगा। बट जहां मैजिस्ट्रेट को लगता है अक्यूज गिल्टी है बट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 325 और 360, ही शैल आफ्टर हियरिंग द अक्यूज ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पास द सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। दैट मीन्स अगर अक्यूज गिल्टी है, एविडेंसेस से ये प्रूव होता है अक्यूज ने वो ऑफेंस कमिट किया है, देन उसे क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुन के कोर्ट कन्विक्ट कर देगी, सेंटेंस पास कर देगी उसके अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। और 325 360 में अगर प्रोसीड नहीं कर रही है कोर्ट, 360 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 325 इज व्हेन मैजिस्ट्रेट फाइंड्स दैट इस ऑफेंस के लिए इस अक्यूज पर्सन को इतनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बट आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव सच पनिशमेंट, बिकॉज सेक्शन 28 29 प्रोवाइड करती कौन सा मैजिस्ट्रेट कितनी पनिशमेंट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल CGM 7 ईयर्स तक की दे सकता है, असिस्टेंट सेशन जज आपका 10 ईयर्स तक की दे सकता है। ओके, तो अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो अगर लगता है कि ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लगता है कि 7 साल तक की सज़ा है, मेरे जुरिस्डिक्शन से बाहर है, 3 ईयर के बियॉन्ड है, देन इन दैट केस 325 में प्रोसीड करेगा दैट आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव सच पनिशमेंट, तो 320। लेकिन बट इफ 325 नहीं लग रहा है, मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू गिव सच पनिशमेंट, देन ही विल हियर द अक्यूज ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस एंड give him sentence according to law।
same. Previous conviction. Absence of complainant, where the proceedings have been instituted upon complaint. कंप्लेंट पे प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट हुई है एंड ऑन एनी डे फिक्सिंग फॉर द हियरिंग की जो डेट फिक्स हुई है उस डेट पे कंप्लेनेंट नहीं आता, कंप्लेनेंट एब्सेंट हो जाता है, कंप्लेनेंट इज एब्सेंट. एंड अफेंस किस नेचर का है? कंपाउंडेबल नेचर का. अफेंस में भी कंपाउंडेड अंडर सेक्शन 320 सीआरपीसी में 320 में होती कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग इसके बियॉन्ड, इसके बाहर जितने सेक्शन 320 में प्रोवाइडेड है केवल उन्हीं में कंपाउंडिंग हो सकती है, इसके बाहर नहीं हो सकती है. तो अफेंस कैसा है? कंपाउंडेबल है या फिर कॉग्निजेबल नहीं है. नॉन कॉग्निजेबल अफेंस इज नॉट अ कॉग्निजेबल अफेंस. या तो कंपाउंडेबल है या कॉग्निजेबल अफेंस नहीं है, कंप्लेनेंट एब्सेंट है. देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन notwithstanding anything herein before contained at any time before the charge has framed. चार्ज फ्रेम होने से पहले कभी भी डिस्चार्ज कर सकता है एक्यूज को. कब? जब कंप्लेनेंट एब्सेंट है और कंपाउंडेबल अफेंस का केस है, कंपाउंडेबल अफेंस है या फिर वो कॉग्निजेबल अफेंस नहीं है. ओके, तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकती है कोर्ट अगर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है. इट इज डिस्क्रिशनरी. 250 कॉम्पनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज. दैट मीन्स कि विदाउट एनी रीजनेबल कॉज किसी एक्यूज पर्सन्स पर या एक्यूज पर्सन्स पर एलिगेशंस लगा दी गई हैं और कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट नहीं किया है, कोर्ट ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है. देन इन दैट केस कोर्ट पूछेगी, जिस पर्सन ने कंप्लेनेंट से कोर्ट पूछेगी कि आपने किस शो नोटिस दी, शो कॉज आप दी, कोई भी आप रीजन शो करिए, मुझे शो कॉज नोटिस देगी उसे कि रीजन शो करिए आप कि आपने इन पर्सन्स के अगेंस्ट क्यों कंप्लेंट फाइल की जब इनके अगेंस्ट ऑफेंस नहीं बन रहा था. वाई यू आपने क्यों इनको अननेसेसरी हैरेस किया. तो आप ये इस चीज़ के लिए हमें ग्राउंड शो करिए दैट आपके अगेंस्ट कॉम्पनसेशन क्यों नहीं करनी चाहिए, आपसे आप कॉम्पनसेशन हम क्यों ना ले इस एक्ट के अगेंस्ट. See, if in any case instituted upon complaint or information given to a police officer or to magistrate, one or more person is accused before magistrate and the magistrate by whom the case is heard discharges. Magistrate discharge करता है या acquit करता है all या any of the accused and is of the opinion that there was no reasonable ground from making the accusation. Accusation make करने के कोई भी reasonable ground नहीं थे against them. The magistrate may, by his order of discharge, if the person upon whose complaint या information the accusation was made is present, जिसने क्या नाम accusation लगाया था वो person present है, उससे कोर्ट पूछेगा call upon him forthwith to show cause. Reason show करिए why he should not pay compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one, or if such person is not present direct the issue of summons to him to appear and show cause as aforesaid. अगर वो पर्सन प्रेजेंट है तो कोर्ट में ही उससे बोलेगा कि भाई आप शो कॉज आप बताइए कि क्यों आपसे कॉम्पनसेशन ना ले, आपको क्यों कॉम्पनसेशन नहीं पे करना है अक्यूज पर्सन को, बिकॉज ग्राउंडलेस एक्यूजेशन था, आपने इन्हें हैरेस करा तो आपको कॉम्पनसेशन पे करना होगा. आप रीजन शो करिए कि आप क्यों ये प्रूव कह रहे हैं कि नहीं हमें कॉम्पनसेशन नहीं प्रूव करना है, एक्यूजेशन थे वेल फाउंडेड थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रूव करना. अगर वो पर्सन प्रेजेंट है कंप्लेनेंट तो उससे कोर्ट वहीं पूछ लेगी. अगर वो पर्सन नहीं प्रेजेंट है देन इन दैट केस कोर्ट समन इशू करेगी. मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एंड कंसिडर एनी कॉज विच सच कंप्लेंट, जो भी वो रीजन शो करेगा उसे रिकॉर्ड करेगी मैजिस्ट्रेट. एंड इफ इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग सच एक्यूजेशन, अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है कि ग्राउंड ऑफ एक्यूजेशन करने का कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, देन इन दैट केस कॉम्पनसेशन ऑर्डर कर सकती है कोर्ट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फाइन विच इज एम्पावर्ड टू इम्पोज. जितने अमाउंट तक का फाइन इम्पोज कर सकती है उतने ही अमाउंट तक का कॉम्पनसेशन दे सकती है इस सेक्शन में. तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितने अमाउंट तक का फाइन इम्पोज कर सकता है? 10,000. सेकेंड क्लास 5,000. सीजीएम नो लिमिट, एनी अमाउंट ऑफ फाइन. Trial of summon cases by magistrate, chapter 20. Substance of accusation to be stated. When in a summons case the accused appears or is brought before the magistrate, the particulars of the offence of which he is accused shall be stated to him. समन्स केस में जैसे ही एक्यूज अपीयर होता है या ब्रॉट बिफोर मैजिस्ट्रेट लाया जाता है तो उसको एक्यूजेशंस का सब्सटेंस बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट ये एक्यूजेशंस लगी हैं. एंड ही शैल बी आस्क्ड, एंड उससे पूछा जाएगा वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट,
or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge. Formal charge means in writing. यहाँ पर समन्स केसेस में इन राइटिंग चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर अक्यूज्ड गिल्टी प्लीड कर लेता है, अगर पेटी केसेस हैं, पेटी केसेस मीन्स 206 में कितने, जिसमें फाइन, जो फाइन हो नॉट एक्सीडिंग 1000 हो, तो उस केस में 206 प्रोवाइड कर रहा है ना कि आप उसमें जो अक्यूज पर्सन है वो अपनी गिल्टी प्लीड करके इतना अमाउंट पे कर सकता है कोर्ट में. अगर वो केस है where a summon has been issued under section 206 and the accused desired to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate के सामने अपीयर हुए बिना ही वो अपनी गिल्टी प्लीड कर लेता है, प्लीड करना चाहता है. he shall transfer to the magistrate by post or by messenger a letter containing his plea. then वो by post क्या करेगा, अपना एक लेटर भेजेगा मैजिस्ट्रेट को जिसमें उसकी प्ली रिकॉर्डेड होगी एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द समन, एंड समन्स में जो अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड होगी उसको भी भेजेगा. दैट मीन्स पोस्ट के थ्रू अपनी प्ली भी भेजेगा जिसके थ्रू वो अपना गिल्ट प्लीड कर रहा है, और अमाउंट ऑफ फाइन भी भेजेगा. द मैजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द अक्यूज इन हिज एब्सेंस. मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको उसकी एब्सेंस में कन्विक्ट कर सकता है बिकॉज पेटी केसेस का ऑफेंस है, 206 का है. on his plea of guilt and sentence him to pay the fine specified in the summons, and the amount transmitted by the accused shall be adjusted toward that fine. और where the pleader, जो भी उसने अमाउंट ट्रांसमिट किया उसे उस फाइन के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया जाएगा जो वो लाइबल टू पे था. ठीक है. प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, दैट मीन्स अगर उसने गिल्टी प्लीड किया है या गिल्टी प्लीड नहीं किया है, और कन्विक्शन, गिल्टी प्लीड किया कन्विक्शन नहीं हुआ, या गिल्टी प्लीड किया है प्लीड ही नहीं किया है, then in that case magistrate does not convict. if 252 में अगर मैजिस्ट्रेट से कन्विक्ट नहीं किया गिल्टी प्लीड करने पर, 253 में मैजिस्ट्रेट प्रोसीड, या फिर 253 में मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंसेस. दैट मीन्स ना तो वो 252 में कन्विक्ट हुआ है ना वो 53 में कन्विक्ट हुआ है, देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस लेगा एंड एक्यूज को सुनेगा एंड टेक ऑल सच एविडेंसेस ही प्रोड्यूसेस इन डिफेंस. प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लेगा एंड डिफेंस एविडेंस लेगा. मैजिस्ट्रेट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड क्या करेगा, समन इशू कर सकता है किसी विटनेस को, या कि आप कोर्ट में आइए, आप अपीयर होइए, या कोई डॉक्यूमेंट या थिंग जिसको के नाम जिसका प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है उसके फेवर में समन इशू कर सकता है. द कोर्ट मैजिस्ट्रेट में आफ्टर the magistrate may before summoning any witness on such application require that the reasonable expense of the witnesses incurred in attending for the purpose of trial be deposited in the court. जो भी इन witnesses को बुलाने में जो भी expenses bear हो रहे हैं उन्हें deposit करना होगा कोर्ट में. और उसके बाद 255 में एक्विटल या कन्विक्शन का ऑर्डर पास कर देगी मैजिस्ट्रेट. द मैजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर्ड इन सेक्शन 254 एंड सच फर्दर एविडेंस इफ एनी एज द केस में ऑन हिज ओन मोशन कॉज टू बी प्रोड्यूस फाइंड द अक्यूज नॉट गिल्टी ही शैल रिकॉर्ड अ एक्विटल. जैसे ही मैजिस्ट्रेट ने ये सारे एविडेंसेस देखने में मैजिस्ट्रेट लगता है कि एक्यूज ने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, देन एक्विटल का ऑर्डर पास कर देगा मैजिस्ट्रेट. बट इफ ऐसा लगता है मैजिस्ट्रेट डज नॉट proceed in accordance with section 325 360 he shall if he find the accused guilty pass sentence upon him according to law. अगर accused guilty पाया जाता है तो उसे उसके अगेंस्ट सेंटेंस पास करेगा कोर्ट. मैजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 252 और सेक्शन 255 convict the accused of any offence triable under this chapter which from the facts admitted or proved he appeared to have committed whatever may be the nature of the complaint or summons. If the magistrate is satisfied the accused would not be prejudiced thereby. Non-appearance or death of the complainant. 256 says that if the summons has been issued on complaint पे सम्मन इशू हो गए हैं एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज, और अक्यूज की अपीयरेंस का डेट अपॉइंट हो चुका है. द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर, और कंप्लेनेंट उस दिन नहीं आता है, नॉन अपीयरेंस. द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट विद स्टैंडिंग हियर थिंग एक्विट द अक्यूज. मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक्विट कर देगा अक्यूज को. जबकि वारंट केसेस में क्या था, अगर कंप्लेनेंट नहीं आता है और कंपाउंडेबल नेचर का केस है तो 249 में मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर देगा. यहाँ क्या कर रहा है, एक्विट कर देगा अक्यूज को.
या एडजन कर सकता है हियरिंग को, provided that where is complainant is represented by a pleader or by officer conducting the prosecution, or where the magistrate is of the opinion that the personal attendance of the complainant is not necessary, the magistrate may dispense with his attendance and proceed with the case. But if magistrate को लगता है क्योंकि summons केस है और उसकी personal attendance required नहीं है, dispense with है, then in that case magistrate proceed कर सकता है केस से. और डेथ के भी केस में सेम प्रोविजंस होंगे. नॉन अपीयरेंस किस वजह से, या तो एब्सेंस की वजह से है नॉन अपीयरेंस, या फिर डेथ की वजह से है. ओके. विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट 257. If a complainant at any time before a final order is passed in any case under this satisfies the magistrate that there are sufficient ground for permitting him to withdraw his complaint. कंप्लेनेंट मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करता है कि देर आर सफिशिएंट रीजंस कि मैं अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर सकता हूँ अगेंस्ट द अक्यूज्ड, or if there be more than one accused against all of them, the magistrate may permit him to withdraw the same. Magistrate permission दे सकता है. It is the discretionary power of magistrate. Magistrate चाहे तो permission दे to withdraw the complaint or not on the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. और अगर magistrate permission दे देता है कि complainant को कि complaint withdraw कर लो, हाँ, तो उस केस में accused को magistrate क्या करेगा, acquit कर देगा. Power of court to convert summons cases into warrant cases. 259 provides that. ये भी सेक्शन आपका पूछा जा चुका है कि कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है कि समन्स केसेस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं. वारंट केसेस को समन केसेस में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, समन्स केसेस को वारंट केसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं 259 में. When in the course of trial of a summons case का ट्रायल चल रहा था, relating to an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, जो कि अब पनिशेबल कितनी इम्प्रिजनमेंट था, एक्सीडिंग 6 मंथ्स. इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में द ऑफेंस शुड बी ट्राइड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केस. मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में इसका ट्रायल कैसे होना चाहिए, ट्रायल एज द वारंट केस का जैसे ट्रायल होता है. सच मैजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू रीहियर द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस एंड मे रिकॉल एनी विटनेस हु मे हैव बीन एग्जामिन्ड. दैट मीन्स समन्स केस का ट्रायल चल रहा है, पनिशमेंट कितनी है, एक्सीडिंग 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट है, देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट उसको कन्वर्ट कर सकता है वारंट केसेस में अगर उसे लगता है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ऐसा करना नेसेसरी है. Now summary trial, chapter 21. Power to try summarily 260. Notwithstanding anything contained in this code, any CGM, any MM, any magistrate of first class empowered by High Court in this behalf may, if it thinks fit, try in a summary way all or any of the following offenses. इन offenses की जो list provided है 260 में, इन offenses का summary trial हो सकता है केवल. और कौन कर सकता है, CGM, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हु इज एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट. कौन कौन से ऑफेंसेस इनका समरी ट्रायल हो सकता है, वो ऑफेंसेस जो नॉट पनिशेबल विद डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स. दैट मीन्स जो वारंट केसेस नहीं है, क्योंकि वारंट केसेस की डेफिनेशन क्या है, पनिशमेंट ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, जो वो नहीं है उनका समरी ट्रायल हो सकता है. थेफ्ट, अगर थेफ्ट कमिट हुआ 379 लग रहा है, 380 लग रहा है या 381 लग रहा है आईपीसी का, और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, 2000 से एक्सीड नहीं कर रही है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 2000 से कम है, और ऑफेंस कौन सा है, थेफ्ट का, 379, 380 और 381, उसका समरी ट्रायल हो सकता है. रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411, कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव कर रहे हैं या रिटेन कर रहे हैं अंडर सेक्शन 411 और स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से कम है, डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज. Assisting in concealment or disposal of stolen property under section 414, stolen property को conceal कर रहे हैं, conceal करने में assist कर रहे हैं या dispose of करने में assist कर रहे हैं, और value of property does not exceed 2000 rupees. या 454 या 456 का offense है, उसका summary trial हो सकता है पीसी में. Insult with intent to provoke a breach of peace under section 509 and criminal intimidation punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years या फाइन या विद बोथ अंडर सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी, इनका समरी ट्रायल हो सकता है. इन सारे ऑफेंसेस में से किसी भी ऑफेंस का अगर किसी ने कोई अबेटमेंट किया है या अटेम्प्ट किया है तो उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है, उस अटेम्प्ट और अबेटमेंट का भी. या फिर
कोई अफेंस है जो उसने कहा कि जिसकी कंप्लेंट हुई है सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट में, तो उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है. When in the course of a summary trial, it appears that the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily. समरी ट्रायल के कोर्स में कोर्ट को मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसका समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए. द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉल एनी विटनेसेस हु मे हैव बीन एग्जामिन, जो जिन विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो चुका है उनको रिकॉल करेंगे, दोबारा से बुलाएंगे, एंड प्रोसीड टू री हियर द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस केस, और उस मैटर पे री हियर करेंगे, प्रोसीड करेंगे और री हियरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू दी दिस कोड. दैट मीन्स समरी ट्रायल का प्रोसीजर नहीं लगेगा. समरी ट्रायल बाय अ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास. अच्छा, इसमें प्रोसीजर आपका चैप्टर 20 का लगता है. समरी ट्रायल हमेशा समन्स केसेस में जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है 251 से वो लगेगा आपका. ओके, चैप्टर 20 का प्रोसीजर अप्लाई करेगा समरी ट्रायल में. Now 261 says that High Court may confer on any magistrate invested with the powers of magistrate of second class power to try summarily any offence which is punishable only with fine or imprisonment for a term not exceeding 6 months, with or without fine, and any attempt or abatement to commit any such offence. ये आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट है. इसमें पूछते हैं कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को कौन एम्पावर कर रहा है? हाई कोर्ट कर रहा है. फॉर समरी ट्रायल इन विच केसेस विच इज पनिशेबल फाइन ओनली और इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 months. उस केसेस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास समरी ट्रायल कर सकता है. एंड प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, द प्रोसीजर इज स्पेसिफाइड इन दिस कोड फॉर द ट्रायल ऑफ समन्स केसेस, that is chapter 20, shall be followed except as hereinafter mentioned. No sentence of imprisonment for a term exceeding 3 months shall be passed in any case conviction under this chapter. अगर समरी ट्रायल में समरी ट्रायल हो रहा है कि उस पर्सन का, समरी ट्रायल में उसका कन्विक्शन हो रहा है, then in that case कितनी पनिशमेंट दे सकती है कोर्ट? Not exceeding 3 months. 3 months तक की पनिशमेंट दे सकती है. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है समरी ट्रायल में. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि समरी ट्रायल में कितने टर्म की पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकती है कोर्ट. दैट इज नॉट एक्सीडिंग 3 months. थ्रू 63 रिलेट विद द रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल. रिकॉर्ड्स क्या होंगे समरी ट्रायल के? 264 judgment in cases tried summarily. 265 language of the record and judgment. Every such record and judgment shall be written in the language of the court. वो रिकॉर्ड और जजमेंट किसकी लैंग्वेज में होगा? कोर्ट की लैंग्वेज होगा. नाउ चैप्टर 21A, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशन. सबसे पहले से पूछते हैं चैप्टर नंबर कौन सा? प्ली बार्गेनिंग किस चैप्टर में प्रोवाइडेड है? दैट इज चैप्टर 21. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछते हैं इसमें कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया है? दैट इज योर क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2005. आपको इसकी इन्फोर्समेंट डेट भी याद रखनी होगी. सी Chapter 21A, plea bargaining, containing section from 265A to 65L, was added in the code by Criminal Law Amendment Act 2005 with effect from 5/7/2006. तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से आया? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005, इन्फोर्सिएबल फ्रॉम 5/7/2006. What does it mean? Plea bargaining means pleading of guilty by the accused in a criminal case, in bargain of which he is accused to be left off with a lighter sentence. That means किसी भी criminal proceeding में accused plead कर रहा है that मेरा जो sentence है उसको थोड़ा कम कर दीजिए. Okay? बट इनकी एप्लीकेशन कुछ ही के केसेस में, कुछ केसेस में ये अप्लाई नहीं करते हैं. जैसे कहाँ कहाँ अप्लाई करें? प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन किन किन केसेस में डाली जा सकती है? If the case is not punishable, if the case relates to an offense which is not punishable with death, life imprisonment या imprisonment for a term exceeding 7 years. If offense death से punishable है, life imprisonment से punishable या 7 years exceeding imprisonment से punishable है, then in that case plea bargaining की application नहीं कर सकता accused.
या ऑफेंस इफ रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्रीज में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगी कि कौन कौन से केसेस जो अगेंस्ट दी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई ऑफेंस है तब प्ली बार्गेनिंग उस केस में नहीं हो सकती है। इफ ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। इफ कोई ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट कमिट हुआ है या 14 ईयर से कम के चाइल्ड के ऊपर वो ऑफेंस कमिट हुआ, देन इन दैट केस ऑल्सो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं की जा सकती है। अगर अक्यूज प्रीवियसली कन्विक्ट है देन इन दैट केस ऑल्सो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगेगी। एप्लीकेशन किस कोर्ट पे लगेगी? जिस कोर्ट में केस चल रहा है, जिस कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग है उस कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे प्ली बार्गेनिंग की। और एप्लीकेशन किसके साथ लगाएंगे? एफिडेविट के साथ लगेंगे। एफिडेविट में क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस लिखेंगे और एफिडेविट लिखेंगे उसने वॉलंटरली प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई किया है अक्यूज पर्सन ने, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड extent of the punishment and that he has not been previously convicted by a court in a case in which he had been charged with the same offense। और उसने उसका इस सेम ऑफेंस पे प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ। इस चीज़ का आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा अक्यूज पर्सन का जो प्ली बार्गेनिंग के लिए कोर्ट में अप्लाई कर रहा है। What are the important points? किस पे अप्लाई नहीं करता? अगर ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर है, या ऑफेंस अफेक्ट करते सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज को, या ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, या चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स है, देन इन दैट केस इस चैप्टर के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, जो भी जजमेंट दिया जाएगा इस चैप्टर में, चैप्टर 21 में जो भी अक्यूज ने एप्लीकेशन लगाई है, फिर एमएसडी होता है इनका, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पे अराइव करते हैं, उसके बाद जो जजमेंट आता है उस पर अपील नहीं जाती है। जजमेंट शैल बी फाइनल एंड नो अपील शैल लाई इन एनी कोर्ट अगेंस्ट सच जजमेंट। एक्सेप्शन है कि अगर एसएलपी फाइल हो गई है 136 में एसएलपी फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। रिट पिटीशन 226 या 227 की हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं रिट के लिए। Nothing in this chapter shall apply to any juvenile or child as defined in clause 2K of Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000। तो ये एक्ट जो है, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का कोई भी प्रोविजन जुवेनाइल या चाइल्ड पे नहीं लगता है, जो कि 2K में डिफाइंड है एज अ जुवेनाइल अ चाइल्ड इन द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। इसमें एक क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, प्रोविजन रिलेटिंग टू प्री बार्गेनिंग इज एप्लीकेबल टू, इनमें से किस बेसिस पे अप्लाई करेगा प्रोविजन रिलेटिंग टू प्री बार्गेनिंग? ऑफेंसेस अफेक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया, ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट वुमेन, और ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, या नन ऑफ द ऑफेंस। तो इनमें से किसी पे भी प्री बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं जा सकती है। सो ऑप्शन विल बी नन ऑफ द अबव। ओके, so this is all for the today. Recording stopped.